Hi dear students, I hope you are getting well. Welcome to Stream English Academy. If you are new on this channel, kindly subscribe my channel, and if you want to get my upcoming lectures, press the bell icon. Dear students, last time I discussed the topic which I started, that was about the definition of noun. As well, I introduced the noun, that from where the word noun has been derived. So my this topic is about aspects of noun. It is a very important topic, and the title you can see which I have given to this topic is noun as 5 aspects or functions. So one by one we will discuss in this lecture. I want to describe this topic in English, then I will discuss in Urdu. In Urdu, I want to discuss for those who cannot understand English. So let's start. We will discuss one by one, that we will know that how a noun can work in 5 aspects. So let's start. Number 1. The first aspect is this: noun can work as a subject of verb. Noun can work as a subject of verb. Here example is Aslam plays cricket. How Aslam is working as a subject of verb? The very next place before the verb is subject. So we say that noun can work as a subject of verb. Second aspect, noun can work as an object of verb. How? Sarah writes a letter. The very next place after the verb is a letter. It is object. It is an object. The third one, noun can work as an object of preposition. Noun can work as an object of preposition. Ajmal talked to Shehzad. Sorry, I have underlined talked. It is second form of the verb. It is not a preposition. Only to is the preposition. So accidentally I have underlined the verb in this example. Only to is a preposition. Again, Ajmal talked to Shehzad. The very next place before the object is preposition. You can see again, noun can work as an object of preposition. What? An object of preposition. So Shehzad is object and to is preposition. The very next place before the object is preposition. Aspect number 4. Noun can work as a complement of verb. Noun can work as a complement of verb. Sean is a doctor. Sean is a doctor. When we admire someone, when we show the status of someone, so then we use like he is a principal. A principal is complement. He is a lecturer. A lecturer is complement. The very next and the last one is, sorry, here it is written 1. It is the 5th aspect of noun. Noun can work as a possessive. How? This is Javed's car. Remember one thing, we have two ways when we show the property, possession or ownership of any person. So the one way is this: we use the preposition of. For example, this is the car of Javed, or we can say this is Javed's car. Now I want to discuss this topic in
उर्दू। नाउन एज 5 एस्पेक्ट्स और फंक्शंस, इसम के 5 पहलू और अफ़आल है। एस्पेक्ट मीन पहलू, एस्पेक्ट्स प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा पहलू, फंक्शंस अफ़आल। इसम के 5 एस्पेक्ट्स है। पहला एस्पेक्ट है इसम का, नाउन कैन वर्क एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। नाउन जो है वो काम करता है एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। कैसे? असलम प्लेस क्रिकेट, असलम सब्जेक्ट है तो असलम के बाद जो वेरी नेक्स्ट प्लेस आता है सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वो वर्ब का आता है। तो नाउन जो है एज अ सब्जेक्ट, यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब काम कर रहा है। दूसरे जुमले में हमारे पास है, नाउन कैन वर्क एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। सारा राइट्स अ लेटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब यहाँ पर काम कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? अ लेटर। तो अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के फौरन पीछे जो हमारे पास वर्ड है वो वर्ब है। नाउन कैन वर्क एज सेंटेंस नंबर 3, नाउन कैन वर्क एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इस जुमले में हमारे पास प्रीपोजिशन जो है वो टू है, टॉक्ड नहीं है। गलती से टॉक्ड को भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो नाउन कैन वर्क एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, एज एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, वर्ब थर्ड फॉर्म है, वर्ब के फौरन बाद प्रीपोजिशन आ रहा है और प्रीपोजिशन के फौरन बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसको कहते हैं कि वी यूज नाउन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अजमल टॉक्ड टू शहजाद। द फोर्थ सेंटेंस, नाउन कैन वर्क एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट मीन किसी की तारीफ करना और किसी की ओनरशिप को ज़ाहिर करना, ख़ास तौर पर स्टेटस को, नॉट ओनरशिप, स्टेटस को जब हम ज़ाहिर करते हैं, किसी का पेशा हम ज़ाहिर करते हैं। ई इज़ अ टीचर, ई इज़ एन इंजीनियर, ई इज़ अ डॉक्टर, ई इज़ अ लेक्चरर। तो अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इस जुमले में है अ डॉक्टर, और ये पहलू हमें ये कह रहा है, नाउन कैन वर्क एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। शान इज़ अ डॉक्टर, शान एक डॉक्टर है। तो इस हमारे पास क्या है? वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है जिस तरह हमारे पास होते हैं इज़, आर, एम, एज, ए, वाज, वर। एज अ बे फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और बी फॉर्म ऑफ द वर्ब वी कैन यूज़। इंशाल्लाह मेरे आने वाली वीडियो में फिर मैं जब नाउन के टॉपिक को मैं कंप्लीट करूँगा, कवर करूँगा, उसके बाद फिर मैं एक लेक्चर स्पेशल रिकॉर्ड करूँगा जो वर्ब्स के फंक्शंस के बारे में, मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बारे में होगा। तो अब हमारे पास है द लास्ट वन, नाउन कैन वर्क एज अ पोजेसिव। पोजेसिव मीन मलकियत ज़ाहिर करना, ओनरशिप को ज़ाहिर करना। ओनरशिप को हम दो तरीक़ों से ज़ाहिर करते हैं। एक तरीका ये कि हम जुमले में होफ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ओफ हमें का, के, की का आवाज़ देता है। ओफ जो है हमारे पास प्रीपोजिशन है, एक ओफ का तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास है एपोस्ट्रोफी यस। जब हम एपोस्ट्रोफी यस यूज़ करते हैं तो हम ओनरशिप और पोजीशन जिसे हम कहते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ जावेद्स कार, ये जावेद की गाड़ी है। इसको अब मैं दूसरे तरीके से पढ़ता हूँ ऑफ लगाकर, दिस इज़ द कार ऑफ जावेद, दिस इज़ द कार ऑफ जावेद, ये जावेद की गाड़ी है, दिस इज़ जावेद्स कार। आई होप, उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। फिर से मैं सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने के लिए कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स आपको मिल सके।
Thank you so much.